So in the biology, there are a total 5 units. Okay. So if I start with this biology portion, so you need to. Can you see the black screen? Yes, sir. Okay. So here we have total 5 units, and out of these 5 units, first unit is basically for the diversity. So when you were in the ninth class, you remember you have studied a chapter diversity in living organism. Yes, sir. Remember that? Okay. So diversity in living organisms. So we have to study that chapter in quite detail. Okay. I know this chapter was quite boring for ninth class student, but it won't be that boring. Okay. In the 11th class, it would be quite interesting. Okay. And second chapter is basically for the morphology and anatomy. Second, I'm talking about the units. Okay. So Hmm. it's a morphology and anatomy. Morphology and anatomy means out study of outer structure. Like you can see, I have two eyes, I have two ears, I have mouth. Okay. So these are known as morphology. Morphology means a study of outer structure. But Yes, if I sir. talk about inside structures like intestine, if I talk about complete digestive system, if I talk about complete respiratory system, which is present inside my body, so it is called anatomy. Okay. Yes, sir. So morphology means outer and anatomy means inner. So we are Hmm. not going to study only about the plant, but also the animals. Okay. So Yes, this sir. is about the second unit. Okay. Now, if I talk about the third unit, so third unit is detail with the like deals with the cell and biomolecules. Like in our body, there are so many biomolecules. Like you know that DNA, RNA, protein, carbohydrate, fats. Am I right? Yes, sir. So all these are known as the biomolecules. Why? Because we are made up of these molecules. And when these molecules combine, so obviously they will form cells. You remember when you were in the ninth class, so you studied the fundamental unit cell. Yes, sir. Remember? So we are going to study that portion in the third unit. And now if I talk about the fourth portion is completely about the plant physiology. So we are going to study about plant physiology in very much detail, like transport in plant and the mineral nutrition, photosynthesis, respiration. You remember you studied about the hormones, auxin, gibberellin, cytokine, and abscisic acid, ethylene, when you were in the 10th class, control coordination. Yes, sir. So it is all about in your fourth unit, okay? And Hmm. the last unit, which is very interesting, it is about the animal physiology. So animal physiology, I guess you have already studied when you were in 10th class. You remember the life process, Yes, like sir. nutrition, Yes, sir. respiration, Hmm. transportation, excretion, and two more portion are also coming in this. That is the locomotion and movement. Like, have you studied the skeletal system? No, you haven't studied that. No. Hmm. So अगर मैं skeletal system की, can you understand Hindi also, right? Yes, sir. ओके तो हमारे पास क्या है स्केलेटल सिस्टम होता है पूरा हड्डी का ढांचा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तो हम पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि नया है जो कि हमने ना तो 9th में पढ़ा ना 10th में पढ़ा इज Yes, दैट sir. क्लियर सो इट इज Hmm. ऑल अबाउट योर कंप्लीट 11th पोर्शन तो 11th के अंदर 11th का पोर्शन देखो अगर मैं 12th से कंपैरिजन करूं तो 11th का थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है क्यों क्योंकि जो 12th की यूनिट्स हैं 12th क्लास की वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी चैप्टर्स है 12th के और काफी मतलब अगर मैं बात भी करूँ तो यूजुअली लोगों के 95 प्लस आने से आ जाते हैं 12th में लेकिन 11th में देखा जाए तो यूजुअली लोग 80 70s में ही स्कोर कर पाते हैं तो एक तो स्कूल का अलग पैटर्न होता है खैर ये सब इंटरनल मैटर हो गया लेकिन मेन बात है 11th क्लास की जो बायो है वो 12th क्लास से थोड़ी सी टिपिकल मानी जाती है या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 12th क्लास की बायो इजी है और 11th की थोड़ी इतनी इजी नहीं है ठीक है Hmm. गॉट इट Yes, sir. okay so let's start with your first unit which is diversity in living organism and I'm going to start your first chapter okay Yes, sir. so now if I start the first chapter so it is basically about the biodiversity so Hmm. now if I talk about bio and diversity what it represent or like what is the meaning of biodiversity any guesses Bio means the physical world. Bio means life. Can I say Ah. that? Bio means living organism and Hmm. diversity means variety. So it Hmm. means variety in living organism. Am I right? So Yes, sir. variety in living organism, it means you can see that like right now, if I talk, we have more than lakhs of species in on our earth, right? Yes, So sir. we have so many varieties of organism. Like we can see that animals, so many plants are there, so many microorganisms are there. One which is a coronavirus also, right? Yes, So it sir. is also what these are the like variety. तो ये हमारे पास क्या है तो ये हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी तो वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन है
तो हम सबको 1 बाय 1 पढ़े। जैसे कि कुछ लोग बोले कि मेरे पास आज हम एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे, कल हम गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डॉग पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैट पढ़ेंगे। तो ऐसे लैक्स ऑफ स्पीसीज हैं, तो ऐसा करके तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम तब भी नहीं पढ़ पाएंगे इनके बारे में। तो इनको इंडिविजुअल पढ़ना ठीक रहेगा या सिमिलैरिटीज के बेसिस पे इनको ग्रुप में पढ़ना ठीक रहेगा? सिमिलैरिटीज के बेसिस में ग्रुपिंग करेंगे। यस, तो ये सिमिलैरिटीज अगर देखो, अगर हम ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो एटलीस्ट हम कम से कम 100, 200, 1000 तो ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में पढ़ लेंगे, राइट? यस सर। तो वो वाला ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए हम कैसे पढ़ते हैं इनको? ग्रुप्स के अंदर पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Okay, you know that like we are alive, right? Obviously we are alive, isn't it? So if we are alive, can you tell me what are the basic properties for like being alive? If we are Respiration. alive, so what we have the properties? Respiration. Okay, and locomotion. okay, we can move from one part. Like locomotion is not basically for the plants, right? You are completely right, but not for the plant, because plant are also living organism, but they can't move from one part to another part. Am I right? Yes sir. Okay, so can I say that if I talk about like certain features of the living organism, तो हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की जो अलग अलग फीचर्स हैं तो वो क्या होंगे हमारे पास? देखो, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 10th क्लास और ये 11th और 12th के अंदर अब वो चीज नहीं है, ठीक है? 10th क्लास तक का बेसिक, तो 10th क्लास में लोग यूजुअली सोचते हैं चलो जैसे 10th क्लास में पढ़े हैं वैसे ही हम 11th 12th में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? 11th और 12th में अपर, वी हैव चूजन अपर स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, ओके? तो रिमेम्बर इतना, मतलब जैसे 10th क्लास में यूजुअली बच्चे लेते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छे नंबर 90+ आ जाते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? तो वी हैव टू बी फोकस्ड, ओके? Yes, so we have to focus on that portion. Okay, now if I talk about the living organism, so first can I say that it is the metabolism. Metabolism means जैसे मान लो हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में बहुत टाइप की रिएक्शंस होती है, राइट? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जैसे कि ओवरऑल रिएक्शन इफ आई टॉक अबाउट, जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, तो हमारी बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं तो ब्रेकडाउन भी होता है, राइट? जितनी भी चीजें हम खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, तो दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, राइट? एंड जितनी भी चीजें हम खाते हैं तो ब्रेकडाउन होने के बाद वो नई नई चीजें भी तो बनती हैं, जैसे मान लो जब हम बॉर्न हुए थे, छोटे थे तो इतने से थे, राइट? और आज हम इतने बड़े हैं, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में कोई नई चीज बनी है? बिल्कुल बनी है, हमारी बॉडी में नई नई फॉर्मेशन हो रहा है, नए नए सेल्स बन रहे हैं, तो ये क्या है मेरे पास? दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, राइट? यस सर। तो ये जो ओवरऑल मेरे पास प्रोसेस है ब्रेक डाउन होने का और फॉर्म होने का, तो इसी को टोटल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. So it means both, like अगर मान लो मैं जैसे if you're going to a park and if you see a women which is like quite fat type, बहुत ही मोटी एक औरत को देखा आपने, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या चीज ज्यादा होगा? कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म अगर ज्यादा होगा तो फिर तो वो पतली हो जाएगी ना, क्योंकि अगर उसकी बॉडी में सब चीज टूटती रहेगी तो नई चीज तो नहीं बनेगी, फिर तो वो पतली होगी बहुत, ओके? तो एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा, ओके? एनाबॉलिज्म मींस फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, राइट? तो उसकी बॉडी में क्या हो रहा है? उसकी बॉडी में कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, लेकिन फॉर्मेशन ही फॉर्मेशन होता जा रहा है. That's why she is like fatty type, not that skin, right? Okay, is that clear? Yes sir. Okay. Second, if I talk about the correct feature for the living organism, growth and the development, I can say that. Why growth and development? Okay, like just tell me, growth and development is the same thing or different thing? Growth and Different. development. Yeah. Okay, if I tell you growth and development is basically for the part of any body, but development means it is a overall development, overall growth. Like suppose if my finger get injured, okay, like if I get injury in my finger, so the growth of the cells here, it is called growth, okay? Growth is basically for the stages. जैसे हम छोटे से बड़े हुए तो ये एक ग्रोथ है, छोटे पोर्शन के लिए जो कि नैरो लेवल पे है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट. हम पहले बहुत छोटे थे और आज हम बहुत बड़े हैं, तो इसका मतलब दिस इज द ओवरऑल डेवलपमेंट. इज दैट क्लियर? यस सर. तो व्हिच इज ब्रॉडर टर्म, ग्रोथ और द डेवलपमेंट? ग्रोथ. ब्रॉडर लेवल. देखो ग्रोथ बेसिकली किसके लिए है? ब्रॉडर छोटी सी चीज के लिए. ब्रॉडर का मतलब बड़े लेवल पे क्या होता है? डेवलपमेंट. और छोटे लेवल पे क्या होता है? ग्रोथ. जैसे आपकी चोट लग गई तो चोट फिर थोड़ी दिनों बाद ठीक हो जाती है, 1-2 हफ्ते में, तो वो डेवलपमेंट हुआ या ग्रोथ हुआ है? डेवलपमेंट. हाँ, गलत. सुनो,
छोटे लेवल पे, नैरो लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ, नैरो लेवल पे, तो उसे हम बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है, नैरो लेवल पे। तो नैरो लेवल पे अगर कोई भी चीज होगी तो उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, दो से चार सेल बन रहे हैं, तो मेरे पास वो क्या होता रहेगा, डिवाइड होके एक ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ होने के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर बहुत बार चलता रहेगा, बहुत बार चलता रहेगा, तो फाइनली फिर वो किसको लीड करेगा, डेवलपमेंट को, ओके। ओके। ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट के बाद ग्रोथ नहीं होता। तो ग्रोथ होगा तभी तो हम डेवलप्ड होंगे, राइट। ग्रोथ का मतलब क्या है, एक तरह से समझो सेल डिवीजन, जैसे छोटा सा बच्चा है कोई, राइट। हाँ। तो छोटे से बच्चा बड़ा होता जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में सेल डिवाइड करते जा रहे हैं, सेल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, सेल का मास बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ होते होते फाइनली वो क्या हो जाएगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा, राइट। कहते हो मैंने तो आपको इतना छोटा सा देखा था, इतने बड़े हो गए, इसका मतलब वो क्या हुआ, इतने छोटे से इतना बड़ा हो गया, डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, थोड़े थोड़े करके ग्रोथ करके हुआ है, राइट। ग्रोथ बाय ग्रोथ। हाँ। गॉट इट सुनैना? यस सर। ओके, सो ग्रोथ स्मॉलर लेवल पे है और डेवलपमेंट ब्रॉडर लेवल पे है, okay, got it, I hope. Yes, now if I talk about the reproduction also, so if I talk about the reproduction, so reproduction means production of offspring, right, from Yes, sir. one or like एक organism से मेरे पास finally जो babies आते हैं, offspring आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, reproduction, which you have already studied in the 10th class, remember, चाहे plants हो चाहे animals हो, तो asexual और sexual करके वो क्या करते हैं, मेरे पास growth करते हैं, right. growth का मतलब जैसे अपने नंबर बढ़ाते हैं, reproduction करते हैं, right. Yes, sir. ओके, तो याद है हमने दो टाइप की डिवीजन भी पढ़ी थी फिर, और वो डिवीजन क्या होती है मेरे पास, इफ यू रिमेंबर दैट वी हैव द टू टाइप ऑफ डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस। ओके, तो देखो मियोसिस होता है एक मेरे पास, एक मेरे पास होता है माइटोसिस, ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर अभी इसका यूज होता है बहुत। तो मियोसिस को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, सो आई होप यू कैन कॉपरेट दैट। ओके, रिडक्शन, कोई चीज समझना है तो पूछ लेना। रिडक्शन डिवीजन, और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो ये रिडक्शन डिवीजन और ये इक्वेशनल डिवीजन मेरे पास दो टाइप के हैं, ओके। तो इनका मीनिंग क्या है मेरे पास, देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक मेल है और कोई भी एक फीमेल है, राइट। तो मेल के पास, अगर मेरे पास कोई मेल है तो मेल के पास भी क्या है, मेरे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, राइट। 23 पेयर का मतलब क्या होता है, 46 क्रोमोसोम। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के पास भी कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। तो अगर ये लोग अपने जब स्पर्म देंगे और ये फीमेल जब ओवा देगी, तो इससे आगे जाके जाइगोट बनेगा, राइट। तो अगर ये इन्होंने अपने सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे दिया, मान लो अगर इन्होंने रिप्रोडक्शन में इक्वेशनल डिवीजन कर लिया, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन से तो स्पर्म के पास ही 46 आएगा और फीमेल के पास ही 46 आएगा, तो बेबी कितने का बन जाएगा फिर, 46 प्लस 46 कितने का बन जाएगा, 92। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नहीं, बेबी के 492 नहीं हो सकते, जितने पेरेंट्स के होते हैं उतने ही बेबी के होते हैं। तो इसका मतलब क्या मेरे पास रिप्रोडक्शन में इक्वेशनल डिवीजन हो सकती है? नहीं। तो फिर क्या होनी चाहिए थी मेरे पास, तो मेरे पास होनी चाहिए थी रिडक्शन डिवीजन, यस। तो ये 46 है, तो फिर मेल को क्या करना चाहिए था, आधे क्रोमोसोम भेजने चाहिए थे, 23। फीमेल को भी क्या भेजना चाहिए था, आधे क्रोमोसोम, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस। और 23 फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, 46, राइट। तो बताओ अब ये पेरेंट्स के जैसा मैच कर रहा है, नहीं कर रहा? हाँ। कर रहा है। तभी तो हम एकदम डिट्टो पेरेंट जैसे नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि अगर फादर के जैसे 46 के 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे, फिर तो पूरे पापा ही लगेंगे, पापा जैसे। अगर मदर जैसे, तो इसलिए आधे क्रोमोसोम फादर से, आधे क्रोमोसोम मदर से, तभी तो हमारे अंदर वैरायटी आती है, तभी तो वेरिएशन आता है, जिससे इवोल्यूशन लीड होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत अच्छा फीचर है। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द होमियोस्टेसिस, तो ये मेरे पास ये होमोस्टेटिस क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, होमियोस्टेटिस का मतलब क्या है, देखो बाहर का जो टेम्परेचर है वो बताओ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ। तो बाहर के टेम्परेचर के चेंज हो रहा है, तो क्या हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं। नहीं, we have the constant body temperature, right? So our body has the constant body temperature, but still our body is trying to maintain that, right? जैसे मान लो सर्दियां होती है तो हम ज्यादा कपड़े पहनते हैं, गर्मी होती है तो हम बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो, क्योंकि जब भी चेंज होगा तो हमें दिक्कत होती है। जैसे सर्दी में अगर मान लो थोड़ा पतला कपड़ा नहीं पहने तो ठंड लग जाएगी, ठीक है। गर्मी में क्या होगा, बहुत पसीना आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या है, तो हमें बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो इट मींस वी आर ट्राइंग टू adapt the temperature, we are trying to like regulate our temperature, right?
तो Yes, बाहर की कंडीशन को देखते हुए हमारी बॉडी जो एफर्ट लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमियोस्टेसिस। इज दैट क्लियर? yes, sir. तो अब ये तुम्हें पता है कोई कोल्ड ब्लडेड होता है, कोई वार्म ब्लडेड होता है, मछली है, मछली तो टेम्परेचर को चेंज कर लेती है अपनी बॉडी के, हाँ, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, जैसा पानी का टेम्परेचर होगा तो मछलियां वैसे टेम्परेचर कर लेती हैं, तो उनको कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या है, हम तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है ना, तो हम तो चेंज नहीं कर सकते, तो फिर हमें हाँ. बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर को रखने के लिए चीजें पहननी पड़ती हैं सर्दियों में या गर्मियों में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No, sir. ओके, एंड वी आर अडेप्टिंग द कंडीशन, यस और नो? जैसे आज Yes, अगर मैं sir. अपने पूर्वजों की बात करूं और अपनी बात करूं तो कौन ज्यादा अडेप्टेबल है? हम. हम ज्यादा अडेप्टेबल है, राइट? तो ये भी हम्म. क्या एक लिविंग का फीचर है, क्यों? क्योंकि देखो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा आएगा, जितना हाँ. ज्यादा मेरे पास वेरिएशन आएगा तो उतना ही ज्यादा तो मेरे पास कोई पर्सन अडेप्टेबल होगा, राइट? हम्म. क्योंकि वेरिएशन लीड टू दी डेवलपमेंट, वेरिएशन लीड टू दी इवोल्यूशन, और हाँ. इवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि मेरे पास फाइनली हम वी आर बेटर अडेप्टेड, राइट? Yes, sir. एनी सिंगल डाउट हियर? No, sir. Okay, so I hope it is completely clear. हम्म. Now, after that, okay, now if I start with the cellular structure, okay, so I guess when you were in the ninth class and you have already studied at the cellular structure, like there are two types basically, prokaryotic cell and the eukaryotic cell. Remember that? Yes, sir. जैसे अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के सेल, जैसे बैक्टीरिया के पास होता है, राइट? Yes, बैक्टीरिया एक प्लूरल टर्म है, एक सिंगल बैक्टीरिया के लिए हम बोलते हैं बैक्टीरियम। ओके, बैक्टीरिया yes, का मतलब ये बैक्टीरिया कभी नहीं होता, एक बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया ही बोलते हैं, और अगर एक सिंगल बैक्टीरिया तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियम। bacterium. ओके, तो अब सेलुलर स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो ऐसा क्या होता है? जैसे मैं मोदी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, मोदी के मिनिस्टर्स की बात करता हूँ, मोदी गवर्नमेंट चल रही है राइट सेंटर में, तो अगर मेरे पास मोदी गवर्नमेंट चल रही है तो मुझे एक बात बताओ, मोदी के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, यस और नो? Yes, तो अगर मोदी जी के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं तो बताओ हर एक मिनिस्टर लगे, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कोई मेरे हाँ, पास फॉरेन मिनिस्टर है, कोई मेरे हाँ. पास एजुकेशन मिनिस्टर है, राइट? तो इतने सारे जो मिनिस्टर्स हैं तो हर कोई अपना अपना काम देख रहा है या रैंडम काम देख रहे हैं दूसरे का? नहीं, अपना अपना देखते हैं. अपना अपना देख रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट वे से होगा। हम्म. ठीक है, अच्छा मान लो, अगर मान लो सिर्फ मोदी ही अकेले होते हमारे देश के किंग की तरह और वही सब कुछ मैनेज करते तो क्या इतना अच्छा मैनेज हो पाता? नहीं. भाई एक इंसान क्या क्या चीज मैनेज करेगा इतनी सारी? हाँ. ठीक है, तो इसे, और इतना बड़ा देश है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग होंगे तो वो ज्यादा बेटर है। इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो सेल के अंदर क्या होते हैं मेरे पास? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो अगर तुम्हारी बॉडी में जितने ज्यादा सेल ऑर्गेनेल है इसका मतलब वो क्या है मेरे पास? मिनिस्टर्स। तो हम्म. जितने ज्यादा सेल ऑर्गेनेल उतने ज्यादा मिनिस्टर्स, और जितने Yes. ज्यादा मिनिस्टर उतना ज्यादा एफिशिएंट वर्क। तो हम्म. हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। यू रिमेंबर, आई गेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th क्लास, Yes, remember sir. something, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi bodies, remember mitochondria, lysosomes, so Yes, sir. centrioles, so ये सब क्या होता है प्लांट्स के अंदर? प्लास्टिड्स। तो ये सब क्या है मेरे पास? सेल ऑर्गेनेल्स है, Organelle. जो कि हर किसी को क्या बनाते हैं? एडवांस बनाते हम्म. हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो कैन आई से like in the cellular structure all living organisms are made up of the cell? Yes, sir. एंड हमने ऑलरेडी 9th क्लास में भी एक चीज पढ़ रखी है। हेलो, आवाज आ रही है?